Sir. Class sir. Okay. Now coming to the point, if I have fixed one source, that is suppose you are fixing the 5 volt source, okay, and you have to these two sources you have to make it or replace it according to their internal resistances. Okay, suppose now coming to the case one. What I am telling, suppose you are fixing the 5 volt according to the first the rule of superposition. You have to fix your 5 volt sources. That means you have to fix what is your the value given in the question, that is 5 volt, that is 3 ohm and 4 ohm, and this is the current source given in the circuit, that is your 4 sorry, the current source value, just I cross check what is the value, that is 2 ampere. Okay, and I already mentioned that current source is the open circuited, it becomes open circuited, and your voltage source become short circuited, right? Yes, sir. And your resistances is given here 4 ohm, and here your 10 volt according to the question, that is short circuited, and this is your 2 ampere, that is your open circuited, and this is your resistance 4, and here is also another resistance is there, this is your 2 ohm, this is a 3 ohm, and this is 5 volt. Okay, right? Now coming to the point, how to solve these equations. You first see there is lot of factors you have to consider before solving this problem. You have to see, first point, the current directions. Like suppose this is your 5 volt sources, this is your 5 volt. Okay, I pass the current now for 3 ohm, it is the current is now this much. Suppose I current, I am asking the current for 2 ohm. Okay, and here the current is passing, and here it is an open circuited. Yes, you just see from point A to B, this is your open circuited. That means the current will travel in this direction. Yes or no? Yes, sir. Yeah. If the current will travel in this direction, then what happen? Again, there is a current division occur, right? This is a short circuit path, and this is a 4 ohm resistance path. Where the current will flow? You just tell me. So the short circuited path through the short Very circuit. good, very good. This is the, because it contains lower resistance. Here the resistance is zero. That because due to that the current will flow in this direction. This is a short circuit path, and make a closed circuit path like this. Yes or no? That means the 4 ohm has no role in the circuit. This is the no role. Okay, the presence or absence, it will not affect the circuit performances. Okay, now solving this, redraw the circuit according to the new convention or new circuit formations. You just do, this is your plus or minus 5 volt. Okay, this is your 3 ohm, and this is also flowing to the 2 ohm. Then now this is short circuit path, and close the circuit. Okay, anybody have doubt? No, sir. Then No, i sir. have to I have to calculate, this is the current here, because the current is asking for 2 ohm resistance only. Okay, then this Yes, is the current.
This is the सर current. और एक बार समझा दीजिए। Hello. Yeah. सर और एक बार समझा दीजिए। कहाँ क्या कहाँ से आपको डाउट है? सर वही जो 4 ओम वाला वो कहाँ गया सर? आप क्या अभी ज्वाइन किया क्या? नो पहले सर, से था? वही समझ नहीं आया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको, ये जो मैं क्या सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ही सोर्स को आप फिक्स रखेंगे, बाकी को उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से आप उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, हाँ कि नहीं? तो कल मैं बोल चुका था इसको, जो करंट सोर्स जहां पर भी होगा उसको आपको क्या करेंगे, उसको आप ओपन सर्किटेड करेंगे, बिकॉज दे आर द रेजिस्टेंस इज very high, and in the voltage path there is the resistance is very low, that is the zero resistance. Therefore we are making this as a open circuited, the current source become an open circuited, and the voltage source इसको क्या किया, मैं शॉर्ट सर्किट किया, हाँ कि नहीं? इतना तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ। अभी आपको है करंट का डायरेक्शन से मतलब है कि कैसा वो हो रहा है, राइट? हाँ सर। हाँ। तो पहले इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको दूसरा कलर से, देखिए। हाँ, देखिए, पहले जो करंट जाएगा कहाँ से जाएगा, सोर्स आपका 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट से ही तो करंट जाएगा। हाँ, हाँ सर। हाँ। तो ये अब अगर करंट यहाँ से गया 3 ओम में पहले जाएगा, उसके बाद करंट जाएगा यहाँ, तो यहाँ से एक डिवीजन आता है ए पॉइंट से बी तक, और ए हाँ। से यहाँ पर सपोज सी तक, सपोज, ठीक है? हम्म। यहाँ पर हम्म। करंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हाँ, तो हम्म। अगर करंट यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, देखिए करंट अगर डिवाइड करेगा, करंट को फ्लो करने के लिए आपको एक क्लोज पाथ चाहिए, हाँ कि नहीं? हाँ जहां सर। पर क्लोज पाथ नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, वो राइट? करेगा। हम्म। तो यहां से तो आपको देखिए करंट यहां से जा रहा है तो यहां भी आ सकता था, मगर यहां पर क्या है, ओपन हो जा रहा है पाथ, राइट? हाँ। हाँ। तो यहां से अगर ओपन हो जा रहा है तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, हम्म। तो ये करंट क्या करेगा, सीधा ही जाएगा 2 हम्म। ओम के एकरस में, राइट? हाँ। हाँ। तो ये जो करंट गया यहां तक पहुंच गया सी पॉइंट पे, तो जब सी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो सी से आपको दो पाथ फिर मिल रहा है, एक सी से डायरेक्ट डी आ सकता है, और सी से ये डी वाला सपोज मान लीजिए, तो ये डी पॉइंट है, ये सी से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, राइट? हाँ सर। तो जब आपको मैं कल एक समझाया था, आप जब घर से निकलेंगे आप सीधा पाथ गेट तक जाने के लिए चूज करेंगे, या घूम फिर के वही गेट तक जाने के लिए मतलब वो आपको हम्म। चूज करेंगे, तो आप सीधा पाथ ही चूज करेंगे जहां पर हम्म। आपको कम अपोजिशन हो, मतलब जहां पर कोई आपको मतलब जैसे कि प्रोटेक्ट नहीं करे, उसी टाइप का पाथ आप चूज करेंगे जनरली। तो क्या होता है, तो करंट के लिए भी वही केस होता है, करंट ये क्या करेगा, तो ये जनरल सीधा पाथ, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 4 ओम रेजिस्टेंसेस है, ये क्या करेगा, करंट का फ्लो को रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है। तो ये क्या करेगा, उससे अगर उससे पहले एक क्लोज पाथ मिल गया तो यहाँ पर जाके क्यों जाएगा करंट, तो वो क्लोज पाथ से चला जाएगा ना करंट, समझ हाँ। पाए? तो इसीलिए करंट का डायरेक्शन कैसा हो रहा है, ऐसा होके ये क्लोज पाथ में बन गया, समझ पाए? हाँ। हाँ, हाँ सर। तो ये हाँ। जो 4 ओम है ये प्रेजेंट हो या ना नहीं हो, ये सर्किट में कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, समझ पाए? अच्छा। हाँ। हाँ हाँ, सर। तो अभी अभी मैं आता हूँ, इसी सर्किट को रीड्रॉ कर दिया नीचे से, देखो जो जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा था उसी को रीड्रॉ कर दिया, इसी हाँ सर। को, इसको ए पॉइंट लिखता हूँ, ये सी पॉइंट लिखता हूँ, ये डी पॉइंट, देखो ऐसा ही सर्किट है, और बी पॉइंट तो आपका ओपन सर्किटेड है, इसीलिए ये वाला पॉइंट आपका बी रहा, ये ओपन सर्किटेड पाथ को मेरा करंट नहीं जा रहा है, तो करंट कहाँ जा रहा है, इतना, ठीक है? तो हाँ अभी सर। ये करंट जो होगा, तो ये करंट का वैल्यू अगर मैं पूछूंगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, कैसे होगा, ये टोटल वोल्टेज अमाउंट है और आपका रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड यू आफ्टर मेकिंग दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बनेगा तो क्या हो जाएगा आपका, अगेन प्लस और माइनस 5 वोल्ट, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस, देन अगेन कम टू this is the short circuited path, okay, this is the after due to the connection of the series resistance it becomes the 5 ohm,
यस, 3 + 2 5 होगा कि नहीं होगा रेजिस्टेंस का वैल्यू? हेलो, Yes, sir. या Yes, sir. नाउ योर वोल्टेज इज 5 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा बोलिए अभी, आइडियाज कितना Sir, होगा? 1 ampere. वेरी गुड, 1 ampere. 5 5 दिस इज योर 1 एम्पियर। दिस इज आपका क्या निकला, आइडियाज। मैं क्या बोला था, जितना सोर्सेस होगा उतना टाइम तक करंट को निकालना होगा। मतलब अभी आपको करंट कितना टाइम तक निकालना होगा, टोटल करंट निकालने के लिए, टोटल करंट अगर ये मैं निकालूंगा तो आपको तीन तीन करंट निकालना होगा ड्यू टू बाय वेरिंग डिफरेंट सोर्सेस। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ये आपका फास्ट करंट अभी निकला, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा करंट निकालेंगे, फिर तीसरा करंट निकालेंगे, तभी जाके आपका टोटल करंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी केस सर 1 एम्पियर होगा ना, आपने 1 ओम लिख दिया। अभी नेक्स्ट केस को आप सॉल्व कीजिए, केस 2 में क्या होगा? सर हमने जो शॉर्ट सर्किट किया है उधर अगर रेजिस्टेंस होता तो करंट डिवाइड होता उधर फिर से। यही सर पाथ, ये पाथ पे तो सर कर्सर दिख नहीं रहे सर। हाँ, सर 10 वोल्ट के ऊपर बस ही, मैं सी और मतलब डी जिसको के सर, पॉइंट बीच, ये सी सर और ये सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सी और डी के पॉइंट के बीच में अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो डेफिनेटली करंट डिवाइड होगा वहां पर। Sir, ओके सर। somebody is asking to join. वो अभी तक गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं किया होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करो। हेलो अदर्स, हेलो अदर्स, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, इतना तक समझ में आया या इसमें किसी को डाउट है, बोलो। हेलो, No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं. हाँ, अभी केस 2 में जाएंगे। केस 2 में मैं बोल रहा हूं कि करंट सोर्स को मान के चलिए, राइट? करंट सोर्स को मानने से सर्किट कैसा बनेगा, कौन कौन सा शॉर्ट सर्किटेड होगा बोलिए? सर 5 वोल्ट और ये 10 वोल्ट शॉर्ट सर्किटेड होगा। 5 वोल्ट और 10 वोल्ट को ये होगा, तो ये मान लीजिए 3 ओम। तो इसको मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अभी हुआ, देखिए जो 5 वोल्ट है उसको मैं क्या किया, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, ये शॉर्ट सर्किटेड बन गया। अभी 10 वोल्ट जो है उसको भी मैं शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, तो यहाँ पर कितना है, 3 ओम है, 4 ओम है, 2 ओम है। अभी शॉर्ट सर्किटेड इसको किया, अभी ये। अभी आप बोलिए कि करंट कहाँ फ्लो करेगा इस सर्किट में? करंट का फ्लो कैसे होना चाहिए? सर ऊपर की तरफ Sir, फिर डिवाइड होगा। देखिए अभी मुझको चाहिए करंट किसमें, ये 2 ओम में मुझे करंट चाहिए, मतलब अभी मैं आई डबल डैश निकाल रहा हूं। किसके एक्रॉस में चाहिए, 2 ओम, क्वेश्चन में पूछा भी हुई है 2 ओम के एक्रॉस में करंट। तो मुझे ये 2 ओम के एक्रॉस में करंट चाहिए आई डबल डैश, यस और नो? अगर 2 ओम के एक्रॉस में आई डबल डैश मुझे चाहिए, तो देखिए पहले ये सर्किट में देखिए करंट का वैल्यू, ये 4 ओम के एक्रॉस में भी वही करंट रहेगा या चेंज हो जाएगा? जब तक सीरीज Same, में same. होता है उतना ही करंट फ्लो सर होता है, सेम, तो सेम रहेगा। तो अभी ये सर्किट को मैं अगर रीड्रॉ करूं, और यहाँ पर भी सेम पाथ आता है, देखिए यहाँ पर भी सेम पाथ आता है कि नहीं? क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट जो पहले समझाया, यहाँ पर करंट फ्लो क्यों करेगा, वो 4 ओम में नहीं, क्यों नहीं करेगा, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आता है, सेम सर्किट बनेगा। तो अभी मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो अभी आपका सर्किट ऐसा बन जाएगा, देखिए
ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि करंट जब तक यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो ये शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करेगा। ये यहाँ पर भी करंट जब डिवाइड होगा ये शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करेगा, और यहाँ 4 ओम के एक्रस में करंट फ्लो नहीं करेगा ड्यू टू द मतलब क्या, अपोजिशन के लिए, क्योंकि जहां पर अपोजिशन नहीं होगा वो करंट वहां से इजीली फ्लो कर जाएगा। तो आपका ये जो करंट था यहाँ पर 2 एम्पियर, तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर हो गया। अभी रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 3 और 2 है। और ये जो 4 ओम था, ये जो 4 ओम था इसको मैं नेग्लेक्ट इसलिए किया हूं क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 4 ओम के एक्रस में भी वही 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर इसको मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी मानता हूं और इसी सर्किट को मैं लगाऊंगा, फिर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, तो देखिए कैसे सर्किट बनेगा। ये आपका 2 एम्पियर सोर्स है, हाँ। तभी ये पॉइंट कहां से कहां जा रहा है, ए से बी, सॉरी ये सॉरी बी से ए तक जा रहा है करंट का फ्लो। तभी बी से ए से जा रहा है, तो ए के पाथ में अभी कनेक्ट कौन सा है, 2 है कनेक्ट, और एक पर के साथ में आपका कौन सा है, 3 है कनेक्ट। ये दोनों फिर मिलके कहाँ जा रहे हैं देखो, फिर जाके आपको बी से कनेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसे है सर्किट, देखिए ये बी पॉइंट है, ए से फिर निकल के एक 3 ओम बी से कनेक्ट हुआ है ऐसा। और देखिए फिर बी से जो जा रहा है फिर ये ए से निकल के फिर बी तक आ रहा है, देखिए 2 ओम भी कनेक्शन ऐसा है, ठीक है कनेक्शन। यस सर। हाँ, तो करंट यहाँ पर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पैरेलल एक्रोस में करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवीजन का प्रिंसिपल में क्या बोला था, जिसके हम लोग को करंट किसके एक्रोस में चाहिए, 2 ओम के एक्रोस में चाहिए, यहाँ पर करंट चाहिए। तो जब मैं निकालूंगा यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर ये पैरेलली कनेक्टेड है। ये जो दोनों रेजिस्टेंस है कैसे कनेक्टेड है, ये 2 ओम और 3 ओम पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका जब मैं निकालूंगा तो ये करंट डिवीजन रूल में अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, आई डबल डैश इज इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट रेजिस्टेंस इसका 2 ओम का कौन है, 3 3 डिवाइडेड बाय 2। 3/2 नहीं, 3 बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल यस सर, 2 रेजिस्टेंस कौन है, 3 3 + 2 इंटू करंट कितना है बाबू, 2 एम्पियर। 2। तो अभी आप करंट निकाल सकते हैं इसका, हाँ। करंट कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना आएगा, 6/5। 6/5 दिस इज 6/5 एम्पियर, 1.2। ओके, अभी हम लोग और एक केस बचा, लास्ट वाला केस को कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट वाला केस में किसको मैं मानूंगा, पहले बोल दीजिए। सर लास्ट 10 वाला सर, केस सर में वाई 10 50। वोल्ट को लूंगा, क्योंकि बाकी तो सब कुछ केस 1 और केस 2 कर चुका हूं। अभी केस 3 करूंगा, तो केस 3 में किसको लूंगा, क्योंकि 3 सोर्सेस है, मतलब 3 केसेस बनेगा। जितना सोर्स होगा सर्किट में उतना केसेस बनेगा, उसी हिसाब से करंट का डायरेक्शन आप कैलकुलेट करना है, जिसमें क्वेश्चन में पूछा है। और जितना सोर्सेस को एलिमिनेट करके किए होंगे, टोटल तीनों का अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू योर टोटल करंट, जो क्वेश्चन में पूछा होगा। ये बाकी मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ पाए। इसका एक्सपेरिमेंट पे हम लोग लैब में करेंगे। तो इसमें आप लोग को क्या पता चलता है, जब आपका डिफरेंट सोर्सेस होगा, करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, प्रैक्टिकल केस में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ये मेथड को आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। किसी को डाउट है अभी तक, नो सर। नहीं है। बाकी लोगों को, किसी को सर डाउट नहीं है। नहीं सर, क्लियर हो रहा नहीं है। सर, यस सर। यस सर। अभी केस 3 को आप लोग तो सब रिकॉर्ड में बना चुके हैं, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको क्लियरली बनाता हूं, ठीक है। यस सर। नाउ कमिंग टू द लास्ट केस, दिस इज योर केस नंबर 3। तो आपका क्या है, यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक 4 ओम का
और एक रेजिस्टेंस है, और करंट जहां पर है वो क्या हो जाएगा, आपका ओपन सर्किटेड हो गया। अभी जहां पर ये 5 वोल्ट सोर्स था, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया, राइट। अभी 2, ये आपका 2 ओम है। अभी फिर यहाँ से आपका एक वोल्टेज सोर्स आ रहा है प्लस और माइनस 10, और यहाँ से आ जाएगा रेजिस्टेंस, ये आपको कनेक्ट कर दिया इस एक्रोस में, राइट। यही इस तरीके से सर्किट बनेगा। अभी तो यहाँ पर आपका वैल्यू दिया गया था 3 ओम, यहाँ पर दिया था 4, यहाँ पर दिया था कितना 2, अभी ये 10 वोल्ट है, यहाँ पर 4 है। इतना तक क्लियर सबका? यस सर। अभी मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था आई जस्ट मेक इट शॉर्ट सर्किटेड, एंड यहाँ पर जो करंट सोर्स था उसको मैं क्या कर दिया, ओपन सर्किटेड। ओके, दिस इज योर 2 एम्पियर करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था, इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर 5 वोल्ट था, इसको मैं क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो अभी मैं अप्लाई किसको कर रहा हूँ, 10 वोल्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। करंट किससे एक्रोस में पूछूंगा, करंट आपको मैं पूछ रहा हूँ 2 ओम के एक्रोस में, तो यहाँ पर मैं करंट अभी पूछूंगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपको टोटल करंट निकालना है, इसीलिए इसी करंट को आपको निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग द 10 वोल्ट रेजिस्टेंस। अगेन कोई मुझे बोल सकता है करंट का फ्लो कैसा रहेगा सर्किट में, और इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा, ये रहेगा या नहीं रहेगा? तो 4 ओम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। 4 ओम सर 4 रहेगा ओम का सर। नहीं रहेगा। रहेगा सर रहेगा सर ना इस बार पैरेलल 4 में। ओम से लेके सर जाएंगे। करंट किधर से फ्लो होगा सर? सर वो देखिए क्लॉकवाइज या इधर ही से 10 से? नहीं, मैं बोल रहा हूं अगर अगर मैं इसको मेश एनालिसिस से किससे सॉल्व करता, मेश और नोड से सॉल्व करता, मेश किससे, मेश और नोड से, तभी इसका इंपॉर्टेंस रहता, क्योंकि मैं सभी सोर्स को एक ही साथ ऐड करके मैं उसको सॉल्व करता, राइट। जब मैं एक एक सोर्स को मान के चल रहा हूं, तभी यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, ये वाला जो 4 ओम है उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। क्यों? देखिए, आपको करंट चाहिए सिर्फ इसी में, तो यहाँ पर करंट आपको कैलकुलेट करके क्या करेंगे, हाँ कि नहीं। करंट यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है, अगर मैं आपको पहले से क्या पढ़ाया हूँ, करंट का डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज होना है, करंट का डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज लेंगे किसी भी सर्किट में। तो करंट अगर आपका सपोज यहाँ पर I1 फ्लो कर रहा है, तो आपको मैं पूछ रहा हूँ I1 ट्रिपल डैश, बिकॉज ऑलरेडी तीनों केस के लिए, 2 केस के लिए मैं करंट निकाल चुका हूँ, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला सर्किट का करंट निकालना होगा। यहाँ पर करंट को आपको जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं कहीं क्यों कैलकुलेट करूं, क्यों। हाँ, आप अगर टोटल करंट को कैलकुलेट करेंगे तो कर सकते हैं, इसको कंसीडर करेंगे, मगर मैं तो पूछ रहा हूँ सिर्फ इसी का करंट को, यहाँ पर करंट का मैं पूछा नहीं। अगर आप टोटल करंट पूछेंगे तो इसको मान के टोटल करंट को कैलकुलेट करेंगे। मुझे तो ये टोटल सुपरपोजिशन, टोटल करंट का कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए ये इंडिविजुअल ब्रांच के एक्रोस में, जो इस ब्रांच के एक्रोस में करंट पूछा है, उसी ब्रांच के एक्रोस में करंट को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स उसको वो बोला है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, उसी ब्रांच का करंट को सिर्फ कैलकुलेट करूंगा और अदर ब्रांचेस का करंट को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। समझ पा रहे हो? सर नहीं सर, फिर से थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, ये वाला सर्किट को आप देखिए, ये जो सर्किट है ना, ये पहला वाला सर्किट कहाँ है, ओके, ये वाला सर्किट, इसको मैं थोड़ा एनलाइटन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो सर्किट है अभी दिख रहा है, ये सर्किट वाला, ये जो क्वेश्चन में पूछा था, उसमें मैं क्या पूछा था, इस ब्रांच के एक्रोस में करंट पूछा था। किस ब्रांच के एक्रोस में? 2 ओम के एक्रोस में करंट पूछा था। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कर रहा है, ये एक ही सोर्स को प्रेजेंट करके बाकी दोनों सोर्स को नेग्लेक्ट करके, ठीक है, उसी वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके इसको करंट को कैलकुलेट कर रहा है, और इसी करंट को तीनों सोर्स के लिए इंडिविजुअली वो कैलकुलेट करेगा, और जो करंट सब निकलेगा उसका अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू योर टोटल ब्रांच करंट होगा। अगर मैं इससे आपको मेश एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए बोलता, तो आप, या नोड एनालिसिस से आप यहाँ पर कर लेते, तो करने के बाद टोटल करंट आप निकाल देते,
टोटल करंट और टोटल वोल्टेज आप निकाल सकते थे मेष में, VA, VB एंड VC निकाल देते, जितना नोड होगा उसी हिसाब से वोल्टेज होगा, निकाल के आप क्या करते, ये जो इसके ब्रांच के एक्रस में करंट निकालते। ये मेष एनालिसिस का फॉर्मूला है कि नहीं? यस सर। अभी मैं एक नोडल बोलूंगा तो नोड आपको मानना होगा 1 2, यहाँ पर एक ही नोड होगा 3, तीनों नोड VA एंड VB, तो सभी का वोल्टेज नोडल एनालिसिस से आपका निकाल देंगे, करंट इनकमिंग एंड करंट आउटगोइंग की वजह से। तभी जब करंट वोल्टेज निकलेगा VA, VB एंड VC, सिमिलर प्रोसेस में आप क्या करेंगे, उसी को मतलब VA माइनस VB डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, योर करंट निकल जाएगा। ये नोडल एनालिसिस का मेथड है। और सुपरपोजिशन इसी मेथड को कैसे कर रहा है, एक वोल्टेज सोर्स का रखा, बाकी दोनों वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट किया, तभी एक वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, सेकेंडली फिर इस सोर्स के लिए, करंट सोर्स के लिए कितना यहाँ पर करंट फ्लो होगा, फिर 10 वोल्ट के लिए कितना यहाँ पर करंट फ्लो होगा, तीनों का करंट को जब कैलकुलेट करेगा तभी इसका समेशन होगा टोटल, यहाँ पर जितना करंट फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? तीनों डिफरेंट मेथड से टू सॉल्व सेम प्रॉब्लम। कोई समझ पाया? यस सर। क्योंकि मेष नोड में पढ़ा चुका हूं, ये प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर सुपरपोजिशन एक कंसेप्ट है जो ये क्या करेगा, ये आपका एक ही वोल्टेज सोर्स को रख के बाकी सभी को देयर इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको चेंज करेगा, तभी आपका टोटल करंट कैसे कैलकुलेट होगा। टोटल करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द करंट जनरेटेड बाय ऑल द इंडिविजुअल सोर्सेस, ये करंट हो या वोल्टेज हो। समझ पाए? तो इसी मेथड से मैं उसको इसीलिए सॉल्व कर रहा हूँ, ये सुपरपोजिशन का मेथड है। इसीलिए 3 केस बना, जितना सोर्सेस होगा उतना ही केसेस बनेगा। तो ये एक सोर्स हुआ, तो इसीलिए केस 1 बनाया 5 वोल्ट को लेके, फिर केस 2 को मैं दूसरा सोर्स लिया 2 एम्पियर को, फिर उसके एकरस में जिसमें करंट पूछा था उसी एकरस में करंट को निकाला, फिर थर्ड केस में भी वही मैं कर रहा हूँ। देखिए थर्ड केस में भी वही मैं, इसी एकरस में करंट पूछा गया है तो इसी एकरस में मैं करंट को निकाल रहा हूँ। तो करंट का आप अगर निकालेंगे तो इसका इक्वेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको बोला क्या हूँ, करंट का डायरेक्शन ऑलवेज आप क्लॉकवाइज लीजिए, जितना क्लॉकवाइज लेंगे तो आपको टर्मिनल का पता चलेगा। ठीक है, हुआ? यस सर। यस सर। अभी Yes, मैं sir. बोल रहा हूँ एक बात कि आप पहले देखिए कि ये देखिए करंट जिसे मेष में मैं पढ़ाया था, क्या करंट जहां से इन होगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, जहां से इन हो रहा है प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ से भी करंट इन हो रहा है तो प्लस और माइनस है, राइट? तो अभी मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ से करंट इन कर रहा है तो इसका मतलब ये मेष से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर यहाँ पर देखिए करंट जब यहाँ से फ्लो होगा ये नीचे तो नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्किट ओपन है। ओपन सोर्स ओपन है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा यहाँ पर 5 ओम बन गया टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये आपको मैं लिख दिया हूँ आर इक्विवेलेंट, राइट? यहाँ पर वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, 10 है, और यहाँ पर करंट मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसको क्यों कैलकुलेट करूं, यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि करंट यहाँ से ये क्लोज सर्किट पाथ फ्लो हो गया, तो यहाँ से करंट मेरा यहाँ से फ्लो हो गया, तो ये करंट मुझे मिल जा रहा है, यहाँ पर करंट का कुछ जरूरत नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई ट्रिपल डैश करंट को निकालता हूँ, तो ये कैसा होगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 5 ओम, दिस इज योर 2 एम्पियर, राइट? हुआ? तो 2 एम्पियर जो हुआ, 2 एम्पियर ये आपका देखिए कि क्या है। पहले देखिए करंट डायरेक्शन आप किस साइड में ले रहे हैं, इस साइड में ले रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो ये आपका बन गया 2 एम्पियर। और यहां से आपको मैं अगर सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है, तो सॉल्व करूंगा इसको, यहाँ पर ये 2 एम्पियर कहां जाएगा करंट, मुझे बोलिए? नीचे जाएगा, नीचे सर। ये डाउनवर्ड से ये करंट नीचे नहीं जाएगा सर क्यों?
देखिए मैं करंट का डायरेक्शन कहाँ ले रहा हूँ, डाउनवर्ड ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, मतलब डाउनवर्ड जाएगा। यस सर। मगर मेरा सोर्स क्या है बाबू, सोर्स सर क्या है, अपवर्ड है सर। सोर्स क्या है, प्लस और माइनस है ना। तो करंट, ये ज्यादा वोल्टेज, वोल्टेज जहां पर होगा करंट का फ्लो वहां से होना चाहिए, तो ये इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब मैं जो करंट का डायरेक्शन लिया हूं ये गलत लिया हूं, मैं क्लॉकवाइज में ले रहा हूं, मगर यहाँ पर 2 एम्पियर उतना ही करंट निकलेगा, मगर ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये तो मैं ऐसे समझाया, मगर अभी आप लोग को मैं मेष से समझाता हूँ कि ये कैसे करंट होगा। देखिए मेष में सपोज यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो प्लस से माइनस जब करंट जाएगा तो आपका करंट का वैल्यू -3 इंटू वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, माइनस हो जाएगा, -3 इंटू I1 होगा कि नहीं होगा, यस सर। यस सर। होगा। अभी मैं यस सर। इसको कर रहा हूं फिर -2 इंटू I1 होगा, यस सर। फिर माइनस, प्लस से माइनस आ रहा है करंट, तो -10 हो जा रहा है, इक्वल टू 0। अभी आप इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, -5I1 इक्वल टू 10। तो I1 आपका कितना बना, -10/2 सर साइन नहीं था। एम्पियर, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। समझ पा रहे हो क्या मैं पूछ रहा हूँ, करंट जहां पर पूछा है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये 2 एम्पियर फ्लो करेगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया। यस सर सर। माइनस साइन Yes, sir. ऑपोजिट डायरेक्शन को डिनोट करता है ना। हाँ सर माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो डिनोट कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये क्लॉकवाइज नहीं हो कि करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपका सोर्स है, 10 वोल्ट आपका सोर्स है, तो सोर्स से ही करंट जाएगा ना। हम लोग लिए थे किसी साइन कन्वेंशन के लिए, हम लोग क्लॉकवाइज लिए थे, तो ये पर ये ऑपोजिट करेगा 2 एम्पियर। यस सर। ठीक है, अभी सुपरपोजिशन क्या बोल रहा है, टोटल करंट जब मैं निकालूंगा ये बोल रहा है आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश, ये तीनों करंट को मिलाऊंगा तभी जाके आपका टोटल करंट बनेगा। तो पहले वाला जो आई डैश के केस में जो करंट निकाला था वो कितना था, सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, प्लस आई डबल डैश में 1.2 2. 1.2 एम्पियर, एंड आई ट्रिपल डैश में -2। वेरी गुड -2 एम्पियर। कितना हो जाएगा टोटल करंट, 0.2. 1.2 सर। 0.2 2। 0.2 होगा, हाँ 0.2 होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर करंट कितना फ्लो करेगा, I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये सबसे इजी मेथड है, ये सबसे इजी मेथड है, मगर जितना प्रैक्टिस करोगे तभी जाके समझ पाएंगे, क्योंकि वहां पर टोटल करंट को निकालो, फिर टोटल करंट को या टोटल वोल्टेज को उसी एक ब्रांच के एक्रॉस में आपको देख के वो करंट को निकालो। इससे अच्छा कि तीनों को डिवाइड कर दो, सेपरेट कर दो, सर्किट बहुत सिंपल बन जाएगा। तभी करंट का वैल्यू निकाल दो और तब करंट का डायरेक्शन के हिसाब से ऐड कर दो। ये सुपरपोजिशन थ्योरम बोल रहा है, जहां पर वेरिएबल सोर्सेस होगा, करंट वोल्टेज, क्योंकि देखिए मैं एक कहा, हाँ सुपर नोड में आपको क्या बोला था, वहां पर अगर एक वोल्टेज सोर्स आ गया उसी सर्किट के अंदर, तो मैं क्या बोल रहा था, सुपर नोड का कंसेप्ट वहां पर मैं बोला था। और मेष में अगर करंट सोर्स आ जाता है तभी मैं सुपर मेष का कंसेप्ट बोल रहा था। तो ये कंसेप्ट को आप अवॉइड कब करेंगे, जब ये वाला मेथड सुपरपोजिशन मेथड आप यूज करेंगे, तभी जाके इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला प्रॉब्लम को, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं 3 सोर्सेस को लेके मैं उसको सॉल्व किया हूँ। एग्जाम में अगर आएगा तो आपका 2 सोर्सेस का आ सकता है, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, 3 नहीं आ सकता, मगर कैसा होना चाहिए सर्किट का सॉल्विंग, यहाँ पर मैं पूरा क्लियरली एक एक बीट को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर डाउट है किसी का भी तो आप अभी पूछिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाऊंगा। मतलब मैं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते जा रहा हूँ, सभी प्रॉब्लम में एक एक कंसेप्ट डालते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आपको याद रखना है, और यही प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आएगा तो।
ध्यान में रख के इसी कंसेप्ट को जितना मतलब अभी सुपरपोजिशन में 3 प्रॉब्लम करवा चुका हूँ और 1-2 करवाऊंगा, तो इससे आपका टोटल जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व के टाइम में, आप उसको ध्यान से सुनिए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट है इसी प्रॉब्लम के रिलेटेड तो पूछिए। सर जो केस 2 में जो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है 4 ओम के अक्रॉस में, उसको क्या किया आपने? जो ये जो डायग्राम है इसमें तो 4 एम्पियर 4 ओम नहीं लिए, सेकंड वाला डायग्राम में केस 2 का। रुकिए, हाँ, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर था। मैं आपका प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर 4 ओम क्यों नहीं लिया, राइट? नहीं नहीं सर, आपने जो 2 एम्पियर का हाँ हाँ, ऊपर जो यहाँ पर 4। 4 ओम क्यों, यहाँ पर जो 4 ओम को क्यों नहीं लिया, राइट? हाँ सर। आलता लगा सभी का लिए, ये डाउट है? आलता लगा लिए। ये सभी का डाउट है ना? कोई समझा सकता है क्यों नहीं है? हाँ, बोलिए। तो वहाँ पे जो 2 एम्पियर है वो पूरा 4 ओम के अक्रॉस जा रहा है, तो पूरा क्या ही कर रहे हो? वेरी गुड। क्योंकि देखिए, इसमें मैं और सर्किट में किसी भी ये सर्किट में और सोर्स बचा ही नहीं है। देखिए इस केस 2 में ये सिर्फ 2 एम्पियर का करंट का सोर्स है, बाकी किसी कोई सोर्स है इसमें नहीं है, क्योंकि बाकी के सोर्स को तो मैं शॉर्ट सर्किट कर दिया सबको। तो ये एक ही सोर्स है जिससे यहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर अगर मैं करंट फ्लो करूं तो कैसे करूं? पहले जब करंट फ्लो करूंगा यहाँ पर, ठीक है, करंट जब फ्लो करूंगा, अगर ये 4 ओम पैरेलली कनेक्ट होता तो ये 4 ओम रहता। मगर आपको क्या मैं पढ़ाया हूं, जब करंट फ्लो करेगा एक सीरीज रेजिस्टेंस में, तभी करंट का वैल्यू क्या होता है? सर डोंट, सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में अलग होता है। वेरी गुड। तो ये करंट के साथ क्या है? ये रेजिस्टेंस सीरीज या सीरीज पैरेलल? में। सीरीज सीरीज में। सीरीज में है। तो ये 4 ओम के अक्रॉस में भी कितना करंट फ्लो होगा? 2 2 एम्पियर। यस सर। करंट कहाँ से डिवाइड कर रहा है? ये वाला पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट दिख रहा है? यस सर। ये वाला पॉइंट से करंट आपका एक 3 ओम की तरफ जा रहा है, एक 2 ओम की तरफ जा रहा है। मुझे चाहिए करंट कहाँ पर? यहाँ पर चाहिए। तो मुझे इसीलिए ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस था इसका रिक्वायरमेंट क्या है अभी? आपको तो पता चल गया कि इसके अक्रॉस में कितना करंट फ्लो कर रहा है। जी सर। तो जहां से करंट को आपको चाहिए तब तो उसी वैल्यू उसके को तो पुट अक्रॉस करें। में। हाँ, जी सर। तो ठीक है इसका सर। एक्रोस में जब चाहिए तो 2 ओम के एक्रोस में जब मुझे करंट चाहिए, तभी मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट को फिक्स कर दिया ए एंड बी। तो ए एंड बी के हिसाब से मैं पैरेलल रेजिस्टेंस कर दिया, और पैरेलल रेजिस्टेंस जहां पर होगा वहां पर मैं करंट डिवाइडर रूल से उसके एक्रोस में करंट निकाल दिया। करंट डिवाइडर रूल ये बोलता है कि जहां पर अपोजिट रेजिस्टेंस होगा, मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, हम लोग उसका अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस इनटू द करंट फ्लोन इन द सर्किट, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका करंट निकल गया। करंट डिवीजन रूल। आप पैरेलल रेजिस्टेंस का केस जब मैं पढ़ाया था तो उसी का नोट को देखिए, करंट डिवीजन रूल का फॉर्मूला पता चल जाएगा, और वहां से आप इसका करंट का वैल्यू भी समझ में आ जाएगा कितना निकला। समझ में आया इतना यस तक? सर। किसी को और डाउट केस 1, केस 2 और केस 3 में? नो सर। नो सर। कोई भी पूछ सकता है अगर डाउट है तो। ये मतलब मैं मतलब छोड़ना नहीं चाहता, प्रॉब्लम एक बार समझ गए तो हो गया। और कंसेप्ट कहाँ पर नहीं है, कंसेप्ट यहीं पर है। और जो जो कंसेप्ट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वही कंसेप्ट से आप लोग भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, यही प्रॉब्लम को आप एक काम कीजिए, कैसे इसको आप उसी एकरस में करेंट
आप तीनों केस में ये आपका एक असाइनमेंट है, ये प्रॉब्लम नंबर 3 को आप नोडल, मेश एंड सुपरपोजिशन में सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 है। सर प्रॉब्लम नंबर Yes, 3 sir. कोई यही प्रॉब्लम नंबर जो 3 है, Yes, sir. इसको तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे, यस सर। राइट? यस सर। तो इसमें और किसी का डाउट नहीं है? नो सर। अभी नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करवाते हैं इसी का। फिर नेक्स्ट में आप लोग को मैं मतलब जाऊंगा थेवेनिन थ्योरम को, कल चला जाऊंगा, कल तो नहीं है, परसों होगा सर। ये आपको थोड़ा ध्यान में मतलब इसको थोड़ा मतलब प्रीवियस कंसेप्ट जो मैं पढ़ाया हूँ उसको लगा के इसको सॉल्व करके दिखाए। वही सुपरपोजिशन मेथड में ये सॉल्व होगा। ठीक है, करंट आपको चाहिए जो आरएल जो 2 ओम है ना, उसके अक्रॉस में करंट चाहिए। ठीक है, यहां पर सॉल्व इट बाय सुपरपोजिशन। होगा ये सॉल्व? सभी का होगा? ये मुझे 2-3 सिर्फ आवाज सुनाई दे रहा है, बाकी कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये सर ट्राई कर रहे हैं सर। ये सर हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा। मुझे कोई भी आपसे एक उसका ये बोलिए कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। मुझे सिर्फ स्टार्ट अगर पता चल गया कैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो मैं छोड़ दूंगा इसको, नहीं करूंगा। तो पहले सोर्स देखेंगे कितना सोर्स है, कितना सोर्स उसके है बाद बोलते चलो कितना 3 सोर्स? सोर्स तीन है, तीन तो तीन सोर्स है। सोर्स, 2 करंट, दो ठो करंट सोर्स, एक तो वोल्टेज सोर्स। 1 वोल्ट। वेरी गुड। अभी इसको तो हमारा सर पहला एक सोर्स, हाँ पहला कॉन्सेप्ट मतलब पहला जो सुपरपोजिशन का कंसेप्ट है, पहले केस में हम लोग क्या तो करेंगे? पहले केस में हम वोल्टेज सोर्स को रखेंगे और करंट सोर्स को ओमिट कर देंगे। ओमिट नहीं करना है उसको, मतलब ओपन ओपन कर देना। ओपन सर्किट कर। ओपन सर्किट कर देना है, वही सेम है। हाँ वही सेम, बस ठीक है। तो उसके पहले बाद केस में हाँ कर किए, उसके बाद सर आई निकालेंगे उस करंट सोर्स को लेके, मतलब वोल्टेज सोर्स को लेके। हाँ उसी टाइप का जितना सोर्स होगा उसी का केस को निकालते चलेंगे करंट। यस सर।
जिसमें क्वेश्चन पूछा होगा और लास्ट में आर कर देंगे। तो ये Yes. आर जो करेंगे वो करंट का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आर करने के बाद जितना करंट आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यस सर। हाँ, सबको इतना ही कंसेप्ट है इसका। तो अभी Yes. पहले आप केस वन का, अगर मैं केस वन का आपको बोल रहा हूं, ठीक है, मैं एक ही सर्किट को ले रहा हूं। हाँ, जितना आप ट्राई करिए कि जितना उस सर्किट को, ये दिखता बहुत कॉम्प्लेक्स है, हाँ कि नहीं, ये दिख रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स, मगर जब आप पहले स्टेप में आ जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, मतलब पहले स्टेप में केस वन में आ जाएंगे, तभी और वो डिफिकल्टी नहीं रहेगा इसमें। देखिए कैसा, देखिए मैं पहले एक छोटा सा, मैं एक केस लेके पहले दिखा देता हूँ। देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 6 वोल्ट को पकड़ के मान के चल रहा हूँ। अभी 6 वोल्ट को मुझे सॉल्व करना है। 6 वोल्ट को फिक्स रखूंगा और करंट जो दोनों है उसको मैं ओपन सर्किट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। तो अभी क्या करूंगा मैं, 6 वोल्ट जो है अभी मैं उसको रखा। अरे क्लास टाइमिंग हो जाने से मुझे बोल देना है, सर राइट? मैथ क्लास का लिंक आ गया है। सर हो गया टाइम सर। हो गया? क्लास का लिंक आ Yes, चुका है। sir. टाइम कब है, मतलब कब, और 5 मिनट है ना? नहीं सर, 50 मैथ में क्लास का खत्म लिंक आ होता। गया था। नो Yes, सर। 50 में खत्म होता। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ क्योंकि अटेंडेंस ऑलरेडी मैं ट्रैकर लगा दिया हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं ट्रैकर लगा दिया हूँ, कल मैं नहीं लगाया था, आज मैं लगा दिया हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा। तो सिर्फ दिखा देता हूँ फिर छोड़ दूंगा। देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। अभी ठीक है, ऐसा ही बनेगा सर्किट। बाकी जो जो पॉइंट में मैं, ये ओपन हो गया है, ये वाला पॉइंट, ये 4 एम्पियर यहाँ पर था, ये ओपन हो गया, और एक यहाँ पर 5 एम्पियर था, ये भी ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, हाँ कि नहीं? होगा तो। यस सर। तो यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। अभी यहाँ पर RL कितना है, 2 ओम है, राइट? अभी देखिए सर्किट कितना सिंपल बन गया। यहाँ से मुझे करंट चाहिए, ये वाला आई डबल डैश, आई डैश, ठीक है। तो देखिए ये 2 है ऊपर, ये पैरेलल, ये सीरीज में है, ये 2 है, तो पैरेलल कितना होगा, 2 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ये बन जाएगा आपका ये वाला जो रिड्यूस सर्किट बन जाएगा इसका। तो अभी ये जो बना, इसको मैं एक रेजिस्टेंस से कन्वर्ट किया, फिर और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दे दिया, क्या वोल्टेज जितना है आपका 6, यहाँ पर जितना ये निकलेगा, जितना भी ये निकलेगा उतना, इतना 2। अभी देखिए करंट जब फ्लो करेगा इसी में, मुझे चाहिए ये करंट, तो ये करंट जो आइडियास होगा ये इसका सीरीज में कनेक्शन है, तो 6/2 क्रॉस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, तो ये आपका आइडियास निकल जाएगा, है कि नहीं बोलिए? 2 एम्पियर सर, 2 एम्पियर। होगा ना यस सर। ऐसा? तो ये इसी टाइप का सॉल्व होगा। ये प्रॉब्लम को मैं कॉल करवा दूंगा, आपका अभी क्लास है, ठीक है, मैं इसको कीप कर रहा हूँ, जो एनिमेशन हुआ है मैं कल इसको सॉल्व करवाऊंगा, ये इसको पूरा फुल्ली, Yes, sir. ठीक है। अभी किसी का कुछ डाउट है तो बोल सकते हैं इसमें। नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। नहीं है, सबका क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ क्लियर सर। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। सर असाइनमेंट इसमें देंगे सर? असाइनमेंट पहले लिख लो, फिर मेरा मेल आईडी सबके पास होगा। नहीं सर, नहीं असाइनमेंट सर। के लिए अलग No, sir. बनाना है क्या स्पेशल कॉपी? कॉपी नहीं, मतलब जैसे कि पेपर A4 साइज का पेपर ले आना, उसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना तीनों मेथड Yes, से, sir. फिर सबमिट ठीक करना मुझे। ठीक है सर। ठीक, सबमिट करेंगे मतलब स्कैन करके ही सबमिट करेंगे। ठीक है सर। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय थैंक सर। यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम्म।